But putting a cap on international students just because of housing crisis was the right solution. And this time जो Canadians और I would say जो लोग power में भी है, they are looking for a easy villain. और सही मायने में देखा जाए, this is the actual reality of Canada right now. Cap on international students is a temporary solution to a permanent problem. Hello everyone, my name is Jasminder Singh and आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी एक काफ़ी हॉट टॉपिक के बारे में जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही है, which is cap on international students. So make sure you watch this video till the end because in this video we'll be talking about the reasons which triggered the government to take this decision. इसके क्या alternate options हो सकते थे जो government ले सकती थी, and at last I will be giving you the solution to this problem if you are an international student who is planning to come in Canada in the future intakes. So without wasting any more time, let's start the video. So recently Canada में 2022 में ये देखा गया कि जो active international students थे, they were around 800,000. which was equal to the number of international students all over the world back in 1975. So इस बेसिस पे आप ये easily judge कर सकते हो कि कितने fast pace पे ये दुनिया grow की है. So seems like during this duration Canada has just focused on growing their wealth and not their infrastructure industry. And to be honest, these are not my words. और सही मायने में देखा जाए, this is the actual reality of Canada right now. एंड जो रीसेंट हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं कनाडा के अंदर, उसको आप इसका एक रिजल्ट भी मान सकते हैं. अगर हम पिछले 20 साल का कंपैरिजन करें आज के टाइम से, यू विल बी शॉक टू हियर कि जो हाउसिंग प्राइसेस हैं दे हैव गॉन अप 360%. एंड देयर वाज अ टाइम जब आपकी डिसेंट इनकम होती थी और आप इजीली एक घर अफोर्ड कर पाते थे विद द अमाउंट ऑफ 160,000 to 170,000. बट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी राइट नाउ इन कनाडा. अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक नया घर लेना चाहते हो, make sure you at least thinking about a budget of 700,000 to 800,000, which is I would say 2 to 3 fold of the actual amount that the people were paying back in 2000. And I'm not even considering the option अगर आप ये सोच रहे हो कि टोरंटो और वैंकूवर जैसे बड़े शहर में कितना पैसा लगेगा एक घर अफोर्ड करने के लिए. So for that situation ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ. And these are just not the numbers on the paper. मेरी एक mentor है, she is a mortgage engineer right now. उन्होंने मुझे एक बार एक बात बताई थी कि जब उन्होंने 2008 में अपना पहला घर लिया था, she invested $200,000 in that property. उसी के 4 साल के ड्यूरेशन के अंदर she bought 2 properties, 1 condo and 1 home, and total 4 साल में she bought 3 properties with decent income. At that time she was earning around $30 to $35. अगर उस टाइम को आज के टाइम से कंपेयर किया जाए, I don't feel like अगर आपकी वो अर्निंग है उस डिसेंट इनकम गैप में अगर आप आ रहे हो, यू विल बी एबल टू अफोर्ड अ होम राइट नाउ इन एनी वेयर क्लोजर टू GTA रीजन. एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी राइट नाउ. अगर आपकी डिसेंट इनकम है, यू विल बी फोकस्ड. आपको अपने आप को अपस्किल करने पे इतना मजबूर होना पड़ेगा कि आपको और चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी जस्ट टू अर्न मोर मनी, जस्ट टू अर्न अ लिविंग हायर देन द स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंट इनकम, ताकि आप फर्स्ट होम के लिए क्वालिफाई कर पाओ. And this is not it. Rental places have also seen the impact of this crisis. An average rent of 1 bedroom apartment in Toronto is around $2,500. And to be honest, मुझे नहीं लगता कि कुछ खासा डिफरेंस है किचनर जैसे शहर पे जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ, which is almost 2 hours drive from Toronto. यहाँ पे जो 1 bedroom अपार्टमेंट है उसका रेंट है अराउंड $2,000, विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम. एंड इस सिचुएशन में वो लोग बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं जहाँ पे कपल्स रिमोटली वर्क कर रहे हैं, या लेट्स से अगर आपकी फैमिली से आपके पेरेंट्स आ रहे हैं इंडिया से, एट दिस पॉइंट यू विल बी थिंकिंग एटलीस्ट मैं वहाँ पे रहूँ जहाँ पे थोड़ी प्रिवेसी हो, मेरे घर वाले कंफर्टेबली वहाँ पे रहें. तो एटलीस्ट यू थिंक अबाउट कि रेंटिंग अ 1 bedroom अपार्टमेंट, बट एट वॉट कॉस्ट. अगर आपकी डिसेंट इनकम है आज के टाइम पर, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग कि हाँ मेरे पेरेंट्स को प्राइवेसी मिले, एटलीस्ट वो अच्छे जगह पे रहें, एटलीस्ट उनको थोड़ा कंफर्टेबल मिले, बट यू विल बी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर मंथली इनकम. एंड इसी से छुटकारा पाने के लिए कनाडा कह रहा है कि वो 58 लाख घर बनाएगा 2030 तक, विच टू मी इट सीम्स टू बी अनरियल. बट पुटिंग अ कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हाउसिंग क्राइसिस वाज द राइट सोल्यूशन. स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगाने से पहले कनाडा हैज़ बैंड फॉरेन प्रॉपर्टी ओनरशिप, जिसने काफ़ी हद तक कनाडा की हेल्प की, बट एट अ लो लेवल. एंड इस टाइम जो कनेडियंस और आई वुड से जो लोग पावर में भी है, दे आर लुकिंग फॉर अ ईजी विलन जिसको वो ईजिली टारगेट कर सकते हैं. एंड दे फाउंड नन अदर देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू पुट इन अ फ्रेम कि हाँ भाई ये एक रीज़न माना जा रहा है कि अगर हम इन पे एक कैप लगा देंगे तो हो सकता है हमारे हाउसिंग क्राइसिस किसी हद तक सुधर जाए. टू मी इट डजंट सीम्स टू बी द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ, बिकॉज नो वन इज टॉकिंग अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैनेडियंस एट दिस पॉइंट. बिकॉज जब तक हम एक घर को होम फर्स्ट और इन्वेस्टमेंट एज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं रखेंगे, तब तक जो एक पावर है वो लिमिटेड लोगों के हाथ में ही रहेगी. एंड मेरी ही फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको 4 से 5 साल हो गए हैं कनाडा में, उनकी PR भी आ चुकी है, दे आर अर्निंग अ डिसेंट इनकम, बट दे आर स्टिल फाइंडिंग इट रियली हार्ड
to get their first home. Cap on international students is a temporary solution to a permanent problem. अब ये तो वही बात होगी कि हमारा हाथ कट चुका है बट हम उसके ऊपर बैंडेज लगा के बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि चलो कुछ नहीं होता, हम ठीक हो जाएंगे. बल्कि इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से जो एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता था, दैट वुड हैव बीन टू ब्रिंग मोर ट्रेड वर्कर्स who are qualified, who are skilled enough, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है जो कनाडा की, एटलीस्ट वो जल्दी पेस पकड़े और वो जल्दी ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो, जिस स्पीड से कनाडा की पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है. एंड इसी के रिगार्डिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि कैसे अगर हम ट्रेड वर्कर्स ज़्यादा लाएंगे तो हो सकता है कि हमारी जो हाउसिंग क्राइसिस है वो किसी हद तक थोड़ी ठीक भी हो जाए, बिकॉज जिस नंबर पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस नंबर पे हमारे ट्रेड वर्कर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए नहीं बढ़ रहे. मोर ओवर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, दे एड अराउंड $15 billion एनुअली इन कैनेडियन इकोनॉमी, एंड पुटिंग अ कैप ऑन दैम इज जस्ट रियली सेंसिटिव टॉपिक, बिकॉज इसकी वजह से दोनों ही पार्टीज के फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ता है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ता है कि ताकि उनको अच्छी स्टडीज़ नहीं मिल पाएंगी, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, और कैनेडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज इस कैप की वजह से उनको जो $15 billion एनुअली आ रहा है, दे विल नॉट बी एबल टू जनरेट दैट रेवेन्यू. एंड नॉट इवन दे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, दे आर फेसिंग स्ट्रगल्स इवन बिफोर इवन कमिंग टू कनाडा. उनको 2 से 3 गुना ज़्यादा फीस भरनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर लिविंग इन कनाडा, हु आर द सिटीजन ऑफ कनाडा. And putting a cap on international students is just making their situation worse. But अब जो हो चुका सो हो चुका. So what would be the perfect solution for international students right now? Because इस जगह पे for sure you will be seeing more rejection cases in visa and even in offer letters to the people who will be applying in Canada for their studies. And in this situation I can give you 2 solutions that you can implement right now if you are looking to come in Canada for your studies, and this can even help you overcome this cap situation. And the first solution would be to choose the right course with the right research matching to your प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस और जो आपकी पुरानी स्टडीज़ होंगी उसके रिलेटेड. अगर इस सिचुएशन पे आप कोई रैंडम कोर्स लेने के बारे में सोच रहे होंगे तो आई वुड हाईली सजेस्ट डोंट डू इट राइट नाउ, बिकॉज रिजेक्शन केसेस हाई हो सकते हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैप ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो, सो इट्स गोइंग टू मेक मोर रिजेक्शन केसेस. एंड इस जगह पे अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, इट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ मोर हार्ड. सो मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च टू फाइंड द जो कोर्स होगा वो आपके एटलीस्ट पुराने जॉब एक्सपीरियंस और जो आपकी पुरानी स्टडीज़ है उसके साथ मैच करे. एंड द सेकंड एंड द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इज डोंट कम टू मेजर सिटीज़ इन कैनेडा राइट नाउ. फोकस ऑन गोइंग टू द स्मॉलर सिटीज़. इवन अगर आप ओंटारियो में या BC जैसे प्रोविंस में आ रहे हो, फोकस ऑन गोइंग टू द स्मॉलर सिटीज़, या आप अटलांटिक प्रोविंसेस का भी एक ऑप्शन रख सकते हो. बिकॉज अगर आप सोच रहे होगे कि आप GTA रीजन में या मेन सिटीज़ में आने के बारे में सोच रहे होगे, द चांसेस आर यू विल बी फेसिंग अ रिजेक्शन अप इन दैट सिचुएशन. सो मेक श्योर यू चूज योर राइट कोर्स मैचिंग टू योर प्रीवियस स्टडीज़ एंड प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, प्लस choose the small cities, because बड़े शहरों में rejection cases high होंगे as compared to small cities. So I hope you might have got all the kind of information from this video about this hot topic of cap on international students, and make sure you also share this video with your friend who are in India or even in Canada, ताकि उनको भी एक solution मिल पाए कि वो कैसे इस situation में जो cap लगा है international students के ऊपर, वो कैसे इस situation से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, जो solution मैंने इस वीडियो में दिए हैं. And also don't forget to subscribe this YouTube channel for more such content, and I will be catching up in next video. Until then, see ya.